Hello everyone. Today we are starting with a new chapter, English Usage 2, which is on modifiers. In this chapter we'll understand modifiers क्या होते हैं, कहाँ place होते हैं, कौन से type के होते हैं and so on. ठीक है? So modifiers क्यों use करते हैं? It is to build good English. There is something called dangling modifiers जो इधर दिया है. ये dangling modifiers को आप याद रखना. We need to avoid them. But आगे जाके आएगा वो. ठीक है? Modifiers are always display fondness for their nearest neighbors. मतलब modifiers हमेशा whatever they are next to के पास जाके place हो जाते हैं. ठीक है, इसका मतलब भी हम आगे समझते हैं. बट आखिर modifiers होता क्या है? Modifiers are adjectives and adverbs. Adjectives are something that modifies a noun. ये हमें पता है. Noun क्या होते हैं? Name, place, animal, thing को noun बोलते हैं. आपने बचपन में गेम खेला है, बट वही चीज है. Name, place, animal, thing is a noun. ठीक है. And adverbs क्या होता है? Adverbs modify verbs, gives us more information about the verb. And verb is nothing but an action word. ठीक है. तो modifiers are a combination of adjectives and adverbs. इसको थोड़े बेटर तरीके से समझते हैं. So beautiful car. Car here is a noun and beautiful is giving us more information about the car itself. So noun के बारे में ज्यादा information दे रहा है, hence it's an adjective. ठीक है. Now she drives slowly. Drives is a verb. Slowly gives us more information about drives, which is why it is an adverb and a modifier. She drives very slowly. इसमें क्या हो रहा है? Again, slowly becomes an adverb. Very is giving us more information of कितना slowly drive कर रही थी, तो very. So adverb का adverb is also a part of the modifier and the whole thing very slowly together becomes an adverb. ठीक है? She is very slow. Now इसमें क्या होगा? Slow जो adjective है उसको very adverb join हो रहा है, तो ये पूरा चीज साथ में मिलके बन जाएगा मॉडिफायर. ठीक है, अंडरस्टूड. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग्स. यू आर जस्ट रिकैपिंग. ब्यूटिफुल कार. शी ड्राइव स्लोली. शी ड्राइव्स वेरी स्लोली. इसमें स्लोली इज मॉडिफाइंग वेरी. शी ड्राइव्स वेरी स्लोली क्योंकि इसका ही ये है, तो वेरी स्लोली मॉडिफाइज द वर्ब ड्राइव. एंड शी इज वेरी स्लो, तो वेरी मॉडिफाइज स्लो. ठीक है, एज आई सेड ये एग्जैक्टली वैसा दिया है. ओके. नाउ मॉडिफायर्स हमेशा एक वर्ड नहीं होते, जैसे हमने देखा ब्यूटीफुल कार या स्लोली. मॉडिफायर्स कैन ऑल्सो बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टुगेदर in the work of an adjective or an adverb. For example, the car that was following hers was nowhere in sight. That followed hers gives you more information about the car. The car was nowhere in sight also makes sense as a sentence. But that followed hers tells you कि वो वाली car वो जो उसको follow कर रही थी. So because this is giving more information and it is giving more information about the noun, it becomes a modifier. ठीक है. You have to identify a noun or a verb in the sentence जिसके कुछ modify कर रहा है. ठीक है. After turning on the indicator, she turned left. She turned left itself makes sense, but उसने left turn कब लिया? क्योंकि turn लिया तो verb है ना, तो उसने left turn कब लिया? After turning on the indicator, it is giving us more information. So this becomes a modifier. To avoid being seen, she parked close to the tree. Why did she park close to the tree? क्योंकि parked close to the tree इधर action चल रहा है. To avoid being seen. To avoid being seen becomes a modifier. ठीक है. I hope थोड़ा सेंस ज्यादा बन रहा है. करेक्ट. एज डिस्कस्ड एंड एक्सप्लेन्ड राइट नाउ, मॉडिफाइड कौन सा है और मॉडिफायर कौन सा है ये इस स्लाइड में क्लियर हो जा रहा है. ओके. The group of words are adjectival or adverbial phrases or clauses. क्योंकि वो लंबे सेंटेंस है जो या तो एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं या एडवर्ब का काम कर रहे हैं. This is a recap of all the modified and modifier examples that we just saw. तो
Now, let's work on some more examples to understand this better. Misplaced modifier is a modifier का error जहां पे the modifier word is not near the word they modify, जिसकी वजह से problem हो जाती है. Let's understand problem कैसे होती है. My mother only works on Saturdays and Sundays. It might sound correct क्योंकि हम ऐसा बात करते हैं, बट ये कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस कि मेरी मम्मी सिर्फ सैटरडे संडे को काम करते हैं. बट बिकॉज ओनली इज ट्राइंग टू मॉडिफाई सैटरडे संडे, ओनली सैटरडे संडे, बट बिकॉज वो वर्क्स के बाजू में है, ये सेंटेंस का मीनिंग बन जाता है कि माई मदर ओनली वर्क्स, शी डजंट ईट, शी डजंट स्लीप, शी डजंट डू एनीथिंग, शी ओनली वर्क्स ऑन सैटरडे संडेज. बाकी दिन में भी शायद काम कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे नहीं पता, बट सैटरडे संडे को सोती नहीं है, खाती नहीं है, पीती नहीं है, सिर्फ काम करती है. बट दैट इज नॉट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, राइट? एंड नाउ यू अंडरस्टैंड मिसप्लेस्ड मॉडिफायर का मीनिंग क्या होता है और उसका इफेक्ट क्या होता है. ओनली इज ट्राइंग टू मॉडिफाई सैटरडे एंड संडे, and hence only should be next to Saturday and Sunday. So my mother works only on Saturdays and Sundays. Now this makes sense. There's no ambiguity. Correct? Let's move on. Her job is to file newspaper articles about handgun use in the library. ठीक है? इसमें वापस her job is to file newspaper articles. इसमें दो मतलब क्या आ रहा है कि हैंडगन यूज इन द लाइब्रेरी के न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हमें फाइल करना है, ऐसा लग रहा है. बट दैट इज नॉट द केस ना. द एक्चुअल मीनिंग इसका क्या है कि हर जॉब इज टू फाइल न्यूज़पेपर आर्टिकल्स अबाउट हैंडगन यूज. तो इन द लाइब्रेरी जो ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है कि न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को फाइल कहाँ करना है, वो उसके पास में होना चाहिए टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन. Which is why the revision will be her job in the library, because वो job कहाँ कर रही है ये है ना. तो her job in the library is to file newspaper articles about handgun use. Now there is no ambiguity. It is very clear कि newspaper articles about handgun use, guns कहाँ use हो रही है, handgun कब use हो रही है, इसके ऊपर newspaper articles उनको library में place file करना है. Correct? You understand? हमने जो डिस्कस किया वही in a more pictorial format. ठीक है, let's move on. Now, ये वापस से सेम सेंटेंस है. We go to the examples. Vivek's brother said that he had seen a corpse on his way back from school. ये थोड़ा कंफ्यूजन है. विवेक्स ब्रदर ने क्या ये देखा कि एक कॉप्स अपने घर जा रहा था स्कूल से, मतलब लाश चल रही थी, ऐसा तो नहीं है ना. एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा है ये सेंटेंस कि विवेक के भाई ने जब वो स्कूल से घर आ रहा था एक लाश देखी. तो इसमें अ कॉप्स ऑन हिज वे बैक होम फ्रॉम स्कूल एक लाइन में है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है. उसने ये लाश कब देखी और किसने देखी, वो उसके साथ होना चाहिए. तो इसीलिए विवेक्स ब्रदर सेड दैट ऑन हिज वे बैक होम फ्रॉम स्कूल ही हैड सीन अ कॉप्स. तो ऑन हिज वे बैक होम फ्रॉम स्कूल, ये जो पूरा लाइन है ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, ये पूरा आपका मॉडिफायर है एंड इट हैज टू बी प्लेस्ड नियर Vivek's brother, क्योंकि Vivek's brother was on his way back from school. So Vivek's brother said that on his way back from school he had seen a corpse. ठीक है? Now I have a coffee stain on my shirt that cannot be removed. इसमें क्या हो रहा है? What cannot be removed? Coffee stain या shirt? ये confusion है क्योंकि cannot be removed is placed at the end, तो समझ में नहीं आ रहा है. तो यू हैव टू पुट कैन नॉट बी रिमूव साथ में या समवेयर टू मेक सेंस. ठीक है? इसमें बोलना क्या चाह रहा है ये सेंटेंस कि मेरे शर्ट पे कॉफी स्टेन है और वो कॉफी स्टेन को मैं नहीं निकाल सकता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली शर्ट नहीं निकाल सकता हूँ इज नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग. करेक्ट? तो इफ आई से ऑन माई शर्ट आई हैव अ कॉफी स्टेन, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड. कॉफी स्टेन के पास दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड आना चाहिए, बिकॉज that cannot be removed is modifying coffee stain. ठीक है? समझो?
Let's move on. Here we see the seventh one. I had almost watched the entire movie when the man in front of me suddenly shouted, "The butler did it." ये अगेन ये सेंटेंस आपको बोलने की क्या कोशिश कर रहा है कि मैंने पूरी मूवी ऑलमोस्ट देख ली थी जब मेरे सामने एक आदमी ने बोला द बटलर डिड इट, करेक्ट? बट ये सेंटेंस बोल क्या रहा है? दैट आई हैड ऑलमोस्ट वॉच द एंटायर मूवी। ये जो ऑलमोस्ट है जो मॉडिफाई कर रहा है एंटायर मूवी को, बिकॉज वो वॉच्ड के बाजू में है, वो ऐसा बता रहा है कि मैं जस्ट एंटायर मूवी बैठने कि मैं जस्ट एंटायर मूवी देखने के लिए बैठने ही वाला था जब मुझे एक आदमी ने बोला कि द बटलर डिड इट। इज दिस व्हाट दे आर ट्राइंग टू से? नो, दे आर ट्राइंग टू से कि मैं मूवी देख रहा था, मैं ऑलमोस्ट वो मूवी के एंड में पहुंचने वाला था जब मुझे किसी ने बोला द बटलर डिड इट। तो इसका आंसर होएगा I had watched almost the entire movie. Almost is the modifier modifying entire movie. Hence, I had watched almost the entire movie when the man in front of me suddenly shouted, "The butler did it." Hope this is clear. Next one. Readers of all age enjoy Joseph Conrad's novel today, a author who did not receive much attention until after he died. An author who did not receive much attention until after he died is the modifier, correct? But ये जो today वाला है, today is actually modifying the whole sentence कि आज readers of all age enjoy Joseph's novels, क्योंकि तभी जब वो जिंदा थे तभी उनको ज्यादा अटेंशन नहीं मिला, वो मर गए उनके बाद उनको मिला, ठीक है? तो ये जो टुडे है इज मॉडिफाइंग द होल सेंटेंस, तो इट शुड बी इन द बिगनिंग, it should be in the beginning of the sentence saying today readers of all age and Joseph Conrad an author who did not receive, ये दोनों गड़बड़। टुडे जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करना है वो सबसे पहले आना चाहिए, एंड जोसेफ कॉर्नार्ड के बाजू में उनका an author who did not receive much attention बाजू में आना चाहिए, because it is giving more information about Joseph Conrad and today is modifying the whole sentence. Hope this is clear as well. We move on. Okay. By accident, I poked a little boy with my finger in the eye. This feels like जो रीड कर रहा है उसमें लग रहा है कि मेरे आंख में से एक उंगली निकली which poked a little boy. But is that actually the case? No, right? The case is that by mistakenly I poked the little boy in the eye with my finger. मतलब मैंने उसकी आंख में उंगली डाल दी by mistakenly. Correct? That is what we are trying to say. तो इसका कैसे होएगा? My finger in the eye, ये गड़बड़ है। It should be I poked the little boy in the eye with my finger. Little boy को कहाँ poke किया है? तो in the eye. तो in the eye should be next to the little boy because वो little boy के poking के ऊपर ज्यादा information दे रहा है। So I poked a little boy in the eye with my finger. Now this is making sense because the modifier in the eye is next to a little boy, the phrase that it is modifying. Okay, let's go to the 13th one. The soccer team only won 4 games in the last 3 years. Again, ये sentence क्या बोलने का try कर रहा है कि the soccer team ने सिर्फ 4 गेम जीते हैं इन द लास्ट 3 years, ये बोलने का ट्राई कर रहे हैं ये सेंटेंस, करेक्ट? बट ये बोल क्या रहा है? द सॉकर टीम ओनली वन, दे डिड नॉट प्रैक्टिस, दे डिड नॉट लूज, दे डिड नॉट डू एनीथिंग, दे ओनली वन 4 गेम्स। ये तो गलत है ना? दिस इज लाइक माई मदर वर्क्स ओनली ऑन सैटरडे संडे, सॉरी माई मदर ओनली वर्क्स ऑन सैटरडे संडे, जो आपने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा ना। ओनली is modifying what? 4 games. So it should be next to 4 games, only 4 games. The correct answer would be the soccer team won only 4 games in the last 3 years.
I hope this makes sense. We move on. 15th वाला देखते हैं. Swinging wildly through the trees, the children were delighted by the monkeys. इसमें क्वेश्चन मार्क ये है कि swinging widely through the trees, क्या आर चिल्ड्रन स्विंगिंग वाइडली थ्रू द ट्रीज और द मंकीज? थिंक, क्या चिल्ड्रन एक्चुअली स्विंग कर सकते हैं इतना वाइडली थ्रू द ट्रीज? नहीं ना, इट इज द मंकीज. बट बिकॉज इट इज प्लेस नेक्स्ट टू द चिल्ड्रन, इट इज अ प्रॉब्लम एंड इट इज रॉन्ग. यू नीड टू प्लेस स्विंगिंग वाइडली थ्रू द ट्रीज, जो पूरा मॉडिफायर है, द क्लॉज पूरा मॉडिफायर है, नेक्स्ट टू मंकीज. ये हम कैसे करेंगे? The children were delighted by the monkeys swinging widely through the trees. Now it makes sense क्योंकि monkeys swinging widely through the trees together makes sense. Hence this is correct. Let's look at the 18th one. The mystery has been solved after 10 years of missing portrait. 10 years of missing portrait. The mystery has been solved after 10 years of missing portrait is not sounding correct. क्योंकि जो मिसिंग पोर्ट्रेट है वो 10 साल के बाजू में नहीं होना चाहिए. मिसिंग पोर्ट्रेट इज मॉडिफाइंग द मिस्ट्री, इज गिविंग अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द मिस्ट्री. तो मिसिंग पोर्ट्रेट should be next to the mystery and not after 10 years. Hence the answer should be the mystery of the missing portrait has been solved after 10 years because now this makes sense. ठीक है? I hope you are understanding this. We move ahead. Okay, now we are going to see a different type of misplaced modifier. It is called squinting modifier. Squinting modifier क्या होता है कि intended meaning clearly stating your terms strengthen your case. इसका मतलब समझते हैं. तो students who seek advice of their instructors often can improve their performance. Often जो है वो modifier है, बट वो क्या मॉडिफाई कर रहा है? इस सेंटेंस के दो मतलब निकलते हैं. पहला, क्या वो ऐसा बोल रहा है कि जो बार बार एडवाइस लेते हैं अपने इंस्ट्रक्टर से, ऑफन एडवाइस लेते हैं अपने इंस्ट्रक्टर से, तो उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है? या वो ये बोलने का ट्राई कर रहे हैं कि जो नॉर्मली एडवाइस लेते हैं अपने इंस्ट्रक्टर से, बहुत बार उन बच्चों का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है? आपको समझा? ऑफन अलग अलग जगह में अगर उसको प्लेस करेंगे उसका मतलब अलग अलग बनेगा. For example, students who often seek the advice of their instructors can improve their performance. This is the first one. कि आप अगर बार बार एडवाइस लोगे इंस्ट्रक्टर से तो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है. एंड स्टूडेंट्स हु सीक एडवाइस ऑफ देयर इंस्ट्रक्टर्स कैन ऑफन इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस. मतलब अगर आप आपके इंस्ट्रक्टर्स का एडवाइस लेते हो तो बहुत बार आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है. तो स्क्विंटिंग मॉडिफायर क्या है कि जब एक मॉडिफायर विच इज ऑफन को दोनों जगह पे जब आप प्लेस करो एंड इट स्टिल मेक्स सेंस, तो स्टूडेंट हु ऑफन सीक या कैन ऑफन इंप्रूव, ये दोनों जगह पे इट इज मेकिंग सेंस. तो इट इज नथिंग बट अ स्क्विंटिंग मॉडिफायर एंड बेसिस द कॉन्टेक्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि वो ऑफन कहां पे प्लेस होगा. ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन. नाउ डैंगलिंग मॉडिफायर, हमने स्टार्टिंग में एक इमेज में देखा था डैंगलिंग मॉडिफायर बिल्डिंग गुड इंग्लिश वाले में. तो यहाँ पे हम समझेंगे कि डैंगलिंग मॉडिफायर्स कैसे अवॉइड करने चाहिए और वो क्या होते हैं. ठीक है? डैंगलिंग मॉडिफायर इज वन वेयर मॉडिफाइड इज नॉट एक्सप्लिसिट. किस चीज को मॉडिफाई कर रहे हैं यही नहीं बताया है. फॉर एग्जाम्पल, while walking on the grass a snake bit him. ओके, तो स्नेक ग्रास पे चल रहा था या कोई इंसान या कोई लड़का ग्लास पे चल रहा था, ये नहीं समझ में आ रहा. बिकॉज वाइल वॉकिंग ऑन द ग्रास अ स्नेक बिट हिम, तो ये तो ऐसा भी लग रहा है कि स्नेक भी चल सकता है. एक लड़का, बिकॉज हिम है तो मेल है, कोई मेल भी चल सकता है. नाउ दिस इज एन एम्बिग्विटी. ये कोई भी अगर एम्बिग्विटी आती है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ डैंगलिंग मॉडिफायर एंड यू शुड मेक इट एक्सप्लिसिट या क्लियर इट आउट कि भाई किस चीज को मॉडिफाई करना है. नॉर्मली डैंगलिंग मॉडिफायर्स में सब्जेक्ट नहीं होता है, आपको वो सब्जेक्ट को ऐड करना है. अभी स्नेक तो घास पे नहीं चल सकता है लॉजिकली स्पीकिंग, तो ये जो मेल फिगर है यही घास पे चल रहा होगा. तो while walking on the grass he was bitten by a snake.
Now it is clear that who was walking on the grass and who was bitten by the snake. तो he को introduce किया. This is what a dangling modifier is. Walking on the grass, अभी he को modify कर रहा है. इसका एक और कर सकते हैं कि while he was walking on the grass, a snake bit him. ये भी correct है, ये भी आंसर correct है, ये भी same चीज बता रहा है. And he is next to walking on the grass, which is the modifier, and he is the modified. ठीक है? लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल में आपको ABCD ऑप्शंस दिए हैं. ये ऑप्शंस में आपको फिगर आउट करना है कि कहाँ पे एरर है. ठीक है, ये ऑप्शंस आर बेसिकली क्लॉजेस. मोस्ट हैव फेल्ड, टू डिलीवर ऑन, ऐसे करके क्लॉजेस. तो नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मॉडिफायर्स कौन से हैं. ठीक है, मॉडिफायर नंबर 1 है इजी. इजी सी को मॉडिफाई कर रहा है. फिर मोस्ट हैव, बेसिकली मोस्ट हैव फेल्ड को मॉडिफाई कर रहा है. ठीक है, एंड टू डिलीवर ऑन द प्रोमिसेस मेड. द प्रोमिसेस मेड इज गिविंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट डिलीवर. तो ये सब तो ठीक है, बट व्हेन यू रीड दिस सेंटेंस, looking at the history of mergers and acquisitions, it is easy to see. But who is looking at the history and for whom is it easy to see? ये नहीं समझ में आ रहा है, right? Because वो subject ही missing है, and this is the error. And वो subject आएगा इधर B में. तो how will it make sense? Looking at the history of mergers and acquisition, one can easily see. You are introducing a subject as one. One can easily see that most have failed to deliver on the promises made. ठीक है, इसमें इट वॉज वेरी ट्रिकी टू आइडेंटिफाई कि सब्जेक्ट कहाँ पे मिसिंग है. अपेरेंटली सब्जेक्ट पूरे सेंटेंस में ही मिसिंग है, क्योंकि अगर कोई देख रहा है, किसी को लग रहा है इजी है, बट वो किसी को या कोई ये जो था शब्द वो आपको एड्रेस करना पड़ेगा इन द सेंटेंस, विच इज वाई वन कैन इजीली सी इज मॉडिफाइंग द होल सेंटेंस. ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस. लेट्स ट्राई द सेकेंड वन. In sending the pizza to that address, the wrong house received the delivery. ठीक है, but पिज्जा भेजा किसने है और किसको पता चला wrong house has received the delivery? तो किसी इंसान ने भेजा होगा, किसी पिज्जा पार्लर ने भेजा होगा, जोमैटो स्विगी ने भेजा होगा, किसी ने तो भेजा होगा ना. तो that is what is missing here. In sending the pizza to that address, डोमिनोज या कोई भी जोमैटो, स्विगी, इंस्टामार्ट, जो भी आपको यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड करना है वो कर लो. मैंने डोमिनोज किया है. डोमिनोज डिस्कवर्ड दैट द रॉन्ग हाउस रिसीव्ड द डिलीवरी. समवन हैज टू डिस्कवर इट, समवन हैज टू सेंड इट, करेक्ट. इसलिए टू ऐड दैट सब्जेक्ट ये हो रहा है. अभी अगेन आई एम रिपीटिंग, डोमिनोज, पिज्जा हट, मोजोज, स्विगी, इंस्टामार्ट, आपको जो भी इधर सब्जेक्ट ऐड करना है कर लो, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है. While watching the movie, the lights started to flicker is the next example. While watching the movie, the lights started to flicker. So, who is exactly watching the movie? नहीं पता है ना, कौन देख रहा है मूवी? That is what is missing. So you need to introduce that. So while I was watching the movie or while we were watching the movie, whatever you want to add, the lights started to flicker. या फिर while watching the movie, I found, किसको दिखा कि लाइट्स फ्लिकर हो रहा है? तो I found that the lights started to flicker. आप कहीं पे भी सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो. अगर एक कंटिन्यूअस सेंटेंस है उसमें आप एक सब्जेक्ट भी ऐड कर दोगे, इट इज अंडरस्टूड कि वो पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है. ठीक है, लेट्स गो टू द फिफ्थ वन. While talking to the vet, the cat lay at my foot. अब कौन वेट से बात कर रहा था और किसके फुट पे कैट ने ले डाउन किया? नहीं समझ में आ रहा है ना, बिकॉज अगेन वो सब्जेक्ट मिसिंग है. तो इसमें आंसर आएगा व्हाइल आई वॉज टॉकिंग टू द वेट, द कैट ले ऑन माई फुट. मैं जब वेट से बात कर रहा था तभी कैट मेरे पैर के पास आके सो गई. या फिर व्हाइल टॉकिंग टू द वेट,
मैंने देखा कि कैट मेरे फुट के पास आके सो गई. आई सॉ दैट द कैट ले एट माई फुट. अगेन द सेम थिंग, आप कहीं पे भी सब्जेक्ट ऐड करो, इट विल मेक सेंस टू द होल सेंटेंस. ठीक है. लेट्स लुक एट द 12th वन. To become a respected politician, campaign funds must be carefully administered. Okay, but campaign funds carefully administer कर कौन रहा है ये पता है हमें? नहीं पता है ना. तो that is what is missing. The subject of the action of carefully administrating the campaign funds is what is missing, and that you need to add. तो कैसे क्या बनेगा सेंटेंस? टू बिकम अ रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन वन मस्ट एडमिनिस्टर द कैंपेन फंड्स केयरफुली. वन मस्ट, ही मस्ट, शी मस्ट, दे मस्ट. आपको जो भी ऐड करना चलेगा, मैंने यहाँ पे वन मस्ट ऐड किया है. ठीक है, बिकॉज नाउ एक इंसान फंड्स को एडमिनिस्टर कर रहा है केयरफुली, तो एक इंसान का होना जरूरी है. ठीक है. 14 देखते हैं. Without a plan for the weekend, a Saturday matinee seemed a good idea at the time. But किसको ये गुड आइडिया लगा? किसके पास वीकेंड का प्लान नहीं था? कोई भी सब्जेक्ट है इधर? नहीं है ना. Seemed like a good idea at the time, ये सारे में सब्जेक्ट ही नहीं है. तो without a plan for the weekend, we found Saturday matinee a good idea at the time. We found. ऑल्सो इसमें आप लोग आई फाउंड और ऐसे सब भी कर सकते हो, बट नॉर्मली वीकेंड प्लान्स एक नहीं बनाता है, दोस्तों के साथ बनता है. तो नॉर्मली वी यूज अ प्लूरल वन, बट इवन यूजिंग अ सिंगुलर वन इज नॉट इनकरेक्ट, इट इज ओके. ठीक है. या फिर द सेकेंड ऑप्शन इज एज वी वर विदाउट अ प्लान फॉर द वीकेंड, अ सैटरडे मैटिनी सीम्ड अ गुड आइडिया एट द टाइम. एज वी वर, इसमें भी वी इधर ऐड हो गया. अगेन एक सब्जेक्ट ऐड हुआ इन द होल सेंटेंस, वो पूरे सेंटेंस के लिए सेम सब्जेक्ट है. ठीक है. When taking a grammar quiz, concentration is everything. Again, ग्रामर क्विज ले कौन रहा है? किसके लिए concentration is everything? नहीं पता है ना. तो when one is taking, when he is taking, when she is taking, when you are taking, whatever you want to add here, but add here, is taking a grammar quiz, concentration is everything. ठीक है. Having finished the assignment, the TV was turned on. ऐसा क्या कोई रिमोट कंट्रोल फीचर है कि असाइनमेंट जैसे खत्म किया, बुक क्लोज किया एंड टीवी अपने आप चालू हो गया? ऐसा तो नहीं होगा ना. देयर हैज टू बी समवन हु स्विच्ड ऑन द टीवी एंड समवन हु वाज डूइंग द असाइनमेंट, जिसने फिनिश किया. तो दैट यू नीड टू ऐड. तो हैविंग फिनिश्ड द असाइनमेंट, I turned on the TV. I turned the TV on. Sorry, I turned the TV on. I becomes the subject of the whole sentence, and hence your dangling modifier is sorted. Without knowing his name, it was difficult to introduce him. Again, किसको नाम नहीं पता था? किसको डिफिकल्ट लग रहा था इंट्रोड्यूस करने का? ये नहीं समझ में आ रहा है ना. तो अगेन यू हैव टू ऐड द सब्जेक्ट. विदाउट नोइंग हिज नेम, आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस हिम. मुझे डिफिकल्ट लग रहा था, मुझे नहीं पता था उसका नाम. तो आई बिकम्स योर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है. आई होप आपको डैंगलिंग मॉडिफायर समझा. लेट्स मूव ऑन. तो एडजेक्टिव और एडवर्ब में कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है. ठीक है. शी ड्राइव्स स्लोली आएगा. नॉर्मली एलवाई वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, नॉट ऑल द टाइम बट नॉर्मली. ठीक है. तो ड्राइव्स इज अ वर्ब, तो स्लोली आ जाएगा एज एन एडवर्ब. बट रोजेस स्मेल स्वीटली या स्वीट. तो क्या रोजेस जो स्मेल करते हैं, क्या वो उसके लिए खास कोई एक्शन करते हैं कि वो इनहेरेंटली एक्शन हो रहा है? इनहेरेंटली एक्शन हो रहा है, राइट. तो इसके लिए तभी एडजेक्टिव यूज होगा. तो इसीलिए शी ड्राइव स्लोली, क्योंकि आप ड्राइव एक एकदम एक्टिवली परफॉर्मिंग एक्शन कर रहे हो. एंड रोजेस स्मेल स्वीट, रोजेस स्मेल जो कर रहा है वो इनएक्टिवली परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए उधर एडजेक्टिव आएगा विच इज स्वीट. ठीक है. लेट्स ट्राई सम एग्जांपल्स. यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस है, नेक्स्ट स्लाइड में आंसर्स है. ठीक है. ही राइट्स सो गुड. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इधर एडजेक्टिव या एडवर्ब कहाँ है.
तो he writes so good that he was asked to submit his manuscripts to the editor. आपका adverb, okay, आपका adverb होगा so good या good, क्योंकि writing is an action, ठीक है, तो good वाला चीज फिगर आउट करना है. She spoke quicker than he did. Quicker will become a modifier because spoke action को वो modify कर रहा है. Ruchi felt badly about forgetting Amit's birthday. Felt is an action, तो badly वो modifier बन जाएगा. She looked suspicious at the man wearing the trench coat. Looked अगर verb है तो suspicious adverb है और ये modifier बन जाएगा. Correct? When was the last time you had no allergy symptoms and felt good? How did you feel? Good. तो ये good becomes your modifier. ये सारों में जो मैंने अभी words बोले ये सारे गलत है. क्यों? Let's understand in the next slide. He writes so well. So good नहीं. तो ये guys एक rule है. Good is an adjective. Well is an adverb. Please repeat after me. Good is an adjective. Well is a adverb. ठीक है. Good और well का एक और rule आता है. Good use होता है जब भी किसी चीज की आप क्वालिटी की बात करो. Well use होता है जब भी आप किसी चीज के हेल्थ रिलेटेड चीजों की बात करो. इसका यूज हम आगे के अपने 24th वाले एग्जाम्पल में देखेंगे. पहले हम 9 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. तो ही राइट्स सो गुड के बदले सो वेल that he was asked to submit his manuscripts to the editor because writes is a verb, तो well adverb आना चाहिए. ठीक है. She spoke more quickly. Spoke is a action, ये verb है तो यहाँ पे adverb होना चाहिए. Quicker is not an adverb, it's an adjective. मैंने बोला था ly mostly adverbs होते हैं, तो quickly is an adverb and the correct modifier here. Ruchi felt bad. Now tell me, felt is an actively performing action or an inactively performing action? It is an inactively performing action, right? तो अगर inactively performing action है तो हमें बाजू में adjective डालना है, adverb नहीं. तो इसलिए badly नहीं आएगा, bad आएगा. Ruchi felt bad about forgetting Amit's birthday. Now, she looked suspicious दिया था, but looked is a verb, actively performing action. तो एडवर्ब आना चाहिए, तो ly आना चाहिए, तो सस्पिशियसली इज करेक्ट. शी लुक्ड सस्पिशियस का तो मतलब हो जाएगा कि वो खुद सस्पिशियस थी, बट वो हमें नहीं बोलना है. हमें बोलना है कि उसने उसके तरफ सस्पिशियसली देखा. हेंस इधर एडवर्ब आएगा. नाउ व्हेन आई टोल्ड यू गुड और वेल का एक और रूल, गुड इज क्वालिटी, वेल इज हेल्थ रिलेटेड. तो when was the last time you had no allergy symptoms and felt well, because this is a health related sentence, तो इसलिए इधर well आएगा. I hope you understood this. Let's move on. Double comparison, ये क्या होता है? I have never been more surer of anything in my life. Number one, yes, surer is a proper word, क्योंकि हम बहुत यूज नहीं करते तो हमें नहीं लगता है, बट surer is a word. दूसरा, more surer is not correct English. तुम एक ही लेवल का कंपैरिजन लाओ, या तो more sure बोलो या तो surer बोलो. दोनों ऐड करोगे तो that is a grammatically wrong sentence. Hence the correct is I have never been more sure of anything in my life or I have never been surer of anything in my life. ठीक है. दूसरा रूल, restrictive that only use once in a sentence. तो that और which का हमने रूल जो पहले पढ़ा था in English usage 1, वो क्या कह रहा था कि that use होता है जब चीजें इंपॉर्टेंट होती है और कॉमास नहीं होते हैं, और which यूज होता है जब उसके बिना भी द सेंटेंस मेक सेंस. याद आया आपको? तो in this sentence the thoughts that Ted presented that were about shifting national priorities were well received. इसमें that Ted presented, तो वो तो लिखना पड़ेगा क्योंकि Ted presented is an important part of the sentence. That were about shifting national priorities is not necessarily important. The thoughts that Ted presented were well received is also correct and a complete sentence. तो
दो बार दैट की अगर जरूरत नहीं है तो मत लाओ। आपका दूसरा क्लू इज ये कॉमाज है दोनों, करेक्ट? कॉमाज है दोनों, तो आपको ये समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पे बीच में विच आएगा, दैट नहीं। तो द आंसर इज द थॉट्स दैट टेड प्रेजेंटेड which were about shifting national priorities were very well received। ठीक है, which that वाला रूल याद रखो जो हमने लास्ट क्लास में किया था। I hope you understood what are modifiers, what are dangling modifiers, misplaced modifiers, squinting modifiers। Recap कर लेते हैं। Misplaced modifiers is जब वो modifiers जिस चीज को modify कर रहा है उसके बाजू में नहीं है, कहीं और है, जिसकी वजह से ambiguity बनती है, तो that is a misplaced modifier। Dangling modifier is जब वो पूरे सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, तो वो मॉडिफायर्स जो भी है उस सेंटेंस के, वो मॉडिफाई किसको कर रहे हैं, या वर्ब या एक्शन जो भी है वो कौन कर रहा है, यही नहीं पता है। एंड इन दैट यू हैव टू ऐड अ सब्जेक्ट बेसिस द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। स्क्विंटिंग मॉडिफायर, स्क्विंटिंग मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, ये क्या था? ये था कि जब एक मॉडिफायर जो है वो सेंटेंस के दोनों जगह पे इट मेक्स कंप्लीट सेंस, इट इज नॉट क्रिएटिंग कंप्लीट एम्बिग्विटी, तो इट इज स्क्विंटिंग मॉडिफायर एंड बेसिस द कॉन्टेक्स्ट वी विल डिसाइड कि वो कहां पे प्लेस होगा। देन वी सॉ डबल कंपैरिजन, वो मोर श्योरर वाला एग्जांपल, मोर क्विकर, ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक लेवल ऑफ कंपैरिजन होता है। देन वी सॉ दैट विच का रिवीजन हुआ, दैट इज फॉर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, विच इज फॉर नॉन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड इज ऑल्सो recognized by the commas। ठीक है, this was a recap so far because now we are entering into a new part which is a small and easy part but it is called parallelism। ठीक है, पैरेललिज्म क्या है? आपका बेसिकली जो सेंटेंस होता है उसको सिमिलर स्ट्रक्चर में एक्सप्रेस करना ताकि वो अच्छे से समझे, दिखे, सुनाई दे, सब कुछ। लेट्स अंडरस्टैंड एन एग्जांपल। आई लाइक टू राइट, रीड एंड स्टडीइंग। ये जो स्टडीइंग है वो थोड़ा अजीब लग रहा है, इट इज नॉट पैरेललिज्म। पैरेललिज्म नॉर्मली यूज होता है व्हेन देयर इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो आई लाइक टू राइट, रीड एंड स्टडीइंग नहीं होना चाहिए, या तो तीनों आईएनजी कर दो या तो सबको टू राइट, टू रीड, टू स्टडी कर दो, ईदर ऑफ टू। Again, basis the context, you will decide which of the two, but they all have to be of the same type. For example, I like to read, sorry, I like to write, to read and to study grammar, या फिर I like writing, reading and studying grammar। समझा? ठीक है, let's move on। एक और रूल है, scarcely, barely, hardly, ऐसा जब सब होता है तो इट हैज टू ऑलवेज फॉलो अप विथ अ व्हेन इन दैट सेंटेंस। इसका मतलब क्या है? scarcely had I reached the station the train had left। इसका मतलब क्या है? मैं जस्ट स्टेशन पे पहुंचा या पहुंची तब ट्रेन निकल गई थी। बट व्हेन आई वाज आल्सो एक्सप्लेनिंग इट, मैं जब स्टेशन पे पहुंचा तब ट्रेन निकल गई थी, ये मैंने किया ना, जब और तब। सिमिलरली इसमें स्केर्सली यूज किया है तो व्हेन आना चाहिए। तो स्केर्सली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन हैड लेफ्ट। ऑलवेज रिमेंबर, स्केर्सली, बेयरली, हार्डली, ऐसे सारे जो शब्द है उसके साथ व्हेन आएगा। नाउ व्हाट इज पैरेललिज्म? ये तीनों सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, ग्रामेटिकली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बिकॉज ये पैरेललिज्म नहीं है तो वो सुनने में थोड़ा गड़बड़ लगता है। लेट्स अंडरस्टैंड। यू कैन पे मी नाउ और इट्स ओके इफ यू पे मी लेटर। ये जो है इट्स ओके इफ यू पे मी लेटर, ये थोड़ा ऑफ लग रहा है, और है तो दोनों की तरफ सिमिलर चीजें होगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो सेकेंड वाला जो आइटरेशन है, यू कैन पे मी नाउ और पे मी लेटर, तो इट्स ओके निकाल दिया, पे मी नाउ और पे मी लेटर कर दिया, इट इज स्टिल नॉट द राइट साउंड। द राइट साउंड वुड बी you can pay me now or you can pay me later। Now it is exactly similar to what it was structure wise। This is what parallelism is। Grammatically correct है, but it sounds better, it is a good structured sentence। ठीक है। सेकेंड, ये जो होता है, बोथ बायोलॉजी एंड मेडिसिन आर गुड प्रोफेशंस। तो ये जो
बोथ एंड, रादर देन, नीदर नॉर, ईदर और, ये सारे जो वर्ड्स है, इसको हमेशा जो दोनों चीजें के लिए बात कर रहे हैं उसके आजू बाजू में ही डालना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, बोथ बायोलॉजी एंड मेडिसिन, बायोलॉजी और मेडिसिन की बात हो रही थी तो उसके आजू बाजू में ही बोथ और एंड आया. सेकेंड, I would rather stay up late to finish this paper than get up early in the morning. Rather और than दोनों के बीच के contrasting sentence के पास ही है, exactly बाजू में है, तो that is also correct. ऐसे ये rules है, ये हमें याद रखना है. Let's try to solve this. In the workshop, I learned some good study tips. How to take notes, reading actively, that it's important to get enough sleep. अगेन ग्रामेटिकली ठीक है, बट ये जो लिस्ट है, हाउ टू टेक नोट्स, रीडिंग एक्टिवली, कहीं पे तुम रीडिंग आईएनजी कर रहे हो, कहीं पे तुम हाउ टू कर रहे हो, कहीं पे तुम दैट इट्स इंपॉर्टेंट कर रहे हो. दिस इज नॉट अ वेल स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस. अ वेल स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस वुड बी या तो तुम सब टेकिंग नोट्स, स्लीपिंग इनफ, रीडिंग एक्टिवली, सब में आईएनजी डाल दो, सब में हाउ टू डाल दो, सब में दैट डाल दो, या डायरेक्ट कर दो. तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट किया है. In the workshop, I learned some good study tips. Take notes, read actively, get enough sleep. Direct. ठीक है? So this is parallelism. Let's try to solve this. Let's look at this example. She likes cooking, jogging and to read. अजीब है थोड़ा. तो या तो she likes cooking, jogging and reading आएगा, या फिर आएगा she likes to cook, to jog and to read. ठीक है? Either of them is correct. Now, couple admires people with integrity and who have character. Again, ये दो चीजों की बात कर रहा है, इंटेग्रिटी और कैरेक्टर. तो या तो couple admires people who have integrity and who have character, वो who have साथ में आएगा, या फिर couple admires people with integrity and character. Simple. ठीक है? The hurricane not only destroyed the fishing fleet but also the homes of fishermen. तो इसमें हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला यूज किया है, बट ये सेंटेंस बोलने की कोशिश क्या कर रहा है, दैट द हरिकेन ने सिर्फ फिशिंग फ्लीट को नहीं बट फिशरमैन के घरों को भी खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया. बट ये सेंटेंस बोल क्या रहा है, हरिकेन ने नॉट ओनली डिस्ट्रॉय द फिशिंग फ्लीट, मतलब नॉट ओनली डिस्ट्रॉय द फिशिंग फ्लीट के अलावा भी उसके साथ फिशिंग फ्लीट के साथ ही कुछ हुआ है. एंड बट ऑल्सो द होम्स ऑफ फिशरमैन थोड़ा ऑफ हो गया है. नॉट ओनली बट ऑल्सो इज नॉट प्लेस्ड प्रॉपरली. नॉट ओनली बट ऑल्सो इज ट्राइंग टू से द टू सेंटेंसेस विच इज फिशिंग फ्लीट एंड होम्स ऑफ फिशरमैन के बीच में, करेक्ट? तो इट शुड बी प्लेस्ड राइट नेक्स्ट टू देम. Hence, the correct answer would be the hurricane destroyed not only the fishing fleet but also the homes of fishermen. I hope this makes sense. ठीक है. Fourth, the production manager was asked to write his report quickly, accurately and in detailed manner. Okay, quickly, accurately समझाओ, and in detailed manner off है, but detailedly तो कोई word नहीं होता है, right? Correct. So in such cases, it is okay if you use a synonym with the same meaning. Basically, आपका sentence का intention change नहीं हो रहा है, but आप parallelism ला रहे हो. By writing, the production manager was asked to write his report quickly, accurately and thoroughly. ठीक है? Thoroughly is similar to detailed manner. Let's look at this example now. The teacher said that he was a poor student because he waited until the last minute to study for the exam, completed his lab problems in a careless manner, and his motivation was low. Okay, यहाँ पे भी तीन चीजें हो रही है. Waited till the last minute, completed his lab problems, and motivation was low. But ये जो waited और completed है, दोनों में ed है. तो लास्ट वाले में भी ed होना चाहिए था, करेक्ट? तो क्या होगा, he lacked motivation. So the answer is, the teacher said that he was a poor student because he waited until the last minute to study for the exam, completed his lab problems in a careless manner and lacked motivation. Ed, parallel. Okay? Let's look at this example.
The coach told the players that they should get a lot of sleep, that they should not eat too much, and to do some warm up exercises before the exam. Again, तीन चीजें हो रही है, lack of sleep, sorry, तीन चीजें हो रही है, lot of sleep, not to eat too much और warm up exercises. But जो lot of sleep और not to eat too much है, उसके पहले that they है, तो हमें इधर भी that they add करना होगा. तो आंसर would be, the coach told the players that they should get a lot of sleep, that they should not eat too much, and that they should do some warm up exercises. That they. This is parallel. Let's try this one. The salesman expected that he would present his product at a meeting, that there would be time for him to show his slide presentation, and that questions would be asked by the prospective buyers. Again, three things: product present करने मिलेगा, presentation का time होएगा, and buyers question पूछेंगे. तीनों के आगे that भी है. तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो पहले दो है, दैट इज प्रेजेंट हिज प्रोडक्ट एट द मीटिंग एंड देयर वुड बी टाइम टू शो हिज स्लाइड प्रेजेंटेशन, ये दोनों एक्टिव वॉइस है. बट क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड बाय द प्रोस्पेक्टिव बायर्स, ये पैसिव वॉइस है. तो अगर दोनों एक्टिव है तो ये भी एक्टिव होना चाहिए था. एक्टिव कैसे करेंगे इसको? तो the salesman expected that he would present his product at the meeting, that there would be time for him to show his slide presentation, and that prospective buyers would ask him questions. एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो एक्शन करता है, पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो एक्शन रिसीव करता है. तो प्रोस्पेक्टिव बायर्स क्वेश्चंस पूछेंगे, वो एक्शन कर रहा है, इसलिए वो एक्टिव वॉइस है. Questions would be asked by prospective buyers. Questions आएगा मेरे तरफ by prospective buyers. तो ये रिसीव हो रहा है, तो ये पैसिव है. ठीक है, तो एक्टिव पैसिव वाला भी चीज आपको देखना पड़ेगा, सिर्फ that they should ऐसे सारी चीजें ही नहीं. ठीक है. Now, either you must grant his will or incur his ill will. either और है इसमें. ठीक है. नाउ वी नो दैट ईदर और ऐसी चीजों के आजू बाजू होना चाहिए जिसके लिए वो बनाया गया है. तो ईदर यू अगर है तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि ये होता कि ईदर यू और हर और शी और देम और व्हाटएवर और हुएवर. बट क्या वो यू के लिए ईदर है क्या? नहीं, वो ईदर है रिक्वेस्ट के लिए, ग्रांटिंग हिज रिक्वेस्ट के लिए. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? यू मस्ट ईदर ग्रांट हिज रिक्वेस्ट और इनकर हिज विल. Now either or is right next to the things that it is supposed to be. मतलब either मतलब grant his will और incur his ill will, इसके ही बाजू में either और है. ठीक है. 9th वाला, my objections are, first the injustice of the measure, second that it is unconstitutional. Okay, the injustice of the measure, and second that it is an unconstitutional, ये सब बहुत अलग है. तो इसको हम सॉल्व क्यों करेंगे? that it को ऊपर भी डालेंगे. तो my objections are, first that the measure is unjust, and second that it is inconstitutional. that आ गया दोनों जगह पे. ठीक है. या फिर द इनजस्टिस ऑफ द मेजर एंड सेकेंड द अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ इट, ऐसा कुछ आ सकता. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. लास्ट वाला, हर कंडीशंस फॉर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट आर, फर्स्ट द कमिश्नर हैज टू अप्रूव द टर्म्स, सेकेंड दैट द प्लेयर्स मस्ट साइन एज वेल. इसमें दो चीजें हैं, एक जगह पे दैट है, दूसरी जगह पे दैट नहीं है. दूसरा, हैज टू और मस्ट दोनों का मतलब सेम है, तो हम सेम ही वर्ड यूज कर सकते, दो अलग वर्ड क्यों यूज करना है? तो द आंसर वुड बी, हर कंडीशंस फॉर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट आर, फर्स्ट दैट द कमिश्नर मस्ट अप्रूव द टर्म्स, सेकेंड दैट द अदर प्लेयर्स मस्ट साइन एज वेल. दैट भी आ गया, मस्ट भी आ गया. ओके, सो दिस इज नाउ अ पैरेलल सेंटेंस.
I hope you understood modifiers and parallelism in detail. If you have any doubts, any questions, you can reach out to us anytime. Thank you so much for this